Co robisz najpierw, kiedy skacze ci ciśnienie? Modlę się do Boga, żebyś nie brał losartanu ani jego odpowiedników. Jeśli chcesz bezpiecznie osiągnąć idealne ciśnienie 120/80, za chwilę szybko, ale szczegółowo wyjaśnię ci, dlaczego jedna tabletka losartanu, kaptoprylu lub termisartanu może cię zabić. Szczególnie jeśli pijesz więcej niż litr swojego ulubionego napoju dziennie. Co twój lekarz ukrywa przed tobą, jeśli często odczuwasz skrajne zmęczenie, bóle głowy i zawroty głowy? Nie każdy lekarz ma odwagę powiedzieć ci prawdę prosto w oczy. O ile lat jedna tabletka losartanu skraca życie w 93% przypadków. Liczby nie kłamią, potwierdzają to niezależne badania Uniwersytetu Harvarda. Jak raz na zawsze ustabilizować ciśnienie do poziomu 120/80 za pomocą opuncji, bez szkody dla zdrowia i całkowicie odwrócić nadciśnienie, nawet jeśli straciłeś już nadzieję na rozwiązanie tego problemu. Od 25 lat badam nadciśnienie i wysokie ciśnienie krwi i jestem jednym z czołowych kardiologów w Meksyku. Po przeprowadzeniu ponad 770 eksperymentów naukowych odkryłem, że we wszystkich lekach, które farmaceuci każą ci kupować, brakuje najważniejszego składnika, od którego zależy stabilizacja ciśnienia do poziomu 120/80 oraz całkowite wyzdrowienie z nadciśnienia. W rzeczywistości prawdziwą przyczyną wysokiego ciśnienia nie jest twój styl życia, dieta, wiek, ani nawet genetyka. Prawdziwym powodem nadciśnienia jest niedobór cholesterolu B w organizmie. Tarczyca produkuje hormony wpływające na wiele funkcji organizmu, w tym na układ sercowo-naczyniowy. Brak cholesterolu B podnosi ciśnienie krwi, zwiększając ryzyko zawałów serca, udarów, ślepoty i pogorszenia wzroku. I nie da się temu zapobiec drogimi lekami ani operacjami. Ale znalazłem rozwiązanie i nie zamierzam tego ukrywać, w przeciwieństwie do tych, o których właśnie pomyślałeś. Dlatego po kliknięciu w link poniżej dowiesz się, dlaczego 17 000 Meksykanów łatwo ustabilizowało swoje ciśnienie do idealnego poziomu, nawet jeśli próbowali już niemal wszystkiego i stracili nadzieję. Od teraz 120/80 pozostanie z tobą na zawsze. Jaki oficjalny dokument medyczny potwierdza skuteczność tej metody? Wydawany jest dopiero po 150 niezależnych, ślepych badaniach klinicznych. Ile czasu potrzebujesz, aby zebrać i wymieszać składniki metody opartej na opuncji we własnej kuchni i natychmiast rozpocząć proces normalizacji ciśnienia? Zdziwisz się. Zajmie ci to mniej czasu niż otwarcie lodówki i znalezienie potrzebnych produktów. Po ilu godzinach od wypicia napoju poczujesz ze 100% gwarancją, że typowe objawy nadciśnienia przestały ci dokuczać, co oznacza, że jego przyczyna została usunięta albo proces jej całkowitego zniszczenia już się rozpoczął. Dlaczego losartan, kaptopryl i telmisartan nigdy nie wyleczą nadciśnienia i tylko pogarszają stan pacjentów? Twój lekarz zna odpowiedź, ale ci jej nie powie. Dlaczego? A to jeszcze nie wszystko. Coś tak szokującego, że włosy staną ci dęba, a firmy farmaceutyczne wyznaczą nagrodę za moją głowę. Cieszę się, że ujawniłem ten brudny sekret koncernów farmaceutycznych i w końcu dałem ludziom prawdziwe rozwiązanie problemu niestabilnego ciśnienia. Obejrzyj wideo już teraz i zacznij działać jak najszybciej, ponieważ dla mojego bezpieczeństwa zostanie ono usunięte za 15 minut. Kliknij przycisk poniżej i obejrzyj. आपस में टुकड़ों के लिए लड़ रही हैं। अब क्या उनका खेल खेलना छोड़ दीजिए, धागे को खींच लीजिए, उन लोगों से बहस से इनकार कर दीजिए जो कभी अपने यकीन पर सवाल नहीं करते। याद रखिए, बैज सिर्फ एक टुकड़ा है लोहे और कपड़े का, तब तक जब तक आप झुकती हैं। ताकत का सोर्स आप हैं, वो नहीं, कभी नहीं। और अब आप ये अल्फाज सुन रही हैं, अपनी रूह में एक हल्की सी बिजली महसूस कर रही हैं। दीवार में दरार, दरवाजा खुला, रोशनी चली हुई। आगे बढ़िए और उस रूह से मिलिए जिसे आपने रोजमर्रा की रूटीन्स के नीचे दबा दिया था। वो बेआराम, बेलिबास, बेकैद रूह जो हमेशा असली थी। वरना झूठी जिंदगी का मास्क पहनकर चलती रहिए, कैमरास के नीचे मुस्कुराइए, अपने अंदर की चीख को दबाइए, सर हिलाकर लोगों की बात मानिए। मगर जितनी देर आप रुकती हैं, उतना ही आप अपने साथ बेवफाई करती हैं। आप पैदा नहीं हुई थी परफॉर्म करने के लिए, आप पैदा नहीं हुई थी इताअत के लिए, आप पैदा नहीं हुई थी किसी कमरे के कोने में मर जाने के लिए, जहां आपके ख्वाब किसी पुराने फोल्डर में सड़ते रहे। आप पैदा हुई थी जलने के लिए, रोशनी बनने के लिए, आग बनने के लिए, और ये आपके लिए
वो पहली चिंगारी है। चैप्टर 2। दुनिया बस इस इंतजार में थी कि तुम उसे मुख्तलिफ नजर से देखो। 10 साल की उम्र में इलारा पहली बार एक बैले स्टूडियो में दाखिल हुई। उसका लियोटार्ड बिल्कुल नया था, जूते सख्त और उसकी आंखों में एक बेपरवाह सी चमक। उसने दूसरी लड़कियों को सीधी कतारों में खड़ा देखा। उनकी बाहें और उंगलियां एक जैसी, जैसे एक दूसरे का आईना हो। जब टीचर ने पोजीशंस पुकारी, इलारा का जिस्म उनकी तरह बात नहीं मानता था। वो अभी भी घूमता, फैलता और अपनी खुद की आजाद लय में चलने की जिद करता। उसने उनकी नकल करने की कोशिश की, मगर हर हरकत अजनबी लगती, जैसे कोई जुबान जिसे वो समझ ही नहीं पाती। पहली दफा उसने सोचा शायद उसका अंदाज गलत है। तुम्हें कहा गया कि जिंदगी तुम्हारे बाहर होती है, कि तुम बस देखने वाली हो, छोटी सी, देर से पहुंचने वाली, किसी और के लिखे हुए सीन की मुंतजिर। तुम्हें कहा गया कि ढल जाओ, बर्दाश्त करो, समझाओ और इसी को जिंदगी का नाम दो। मगर ये कभी सच नहीं था। दुनिया किसी स्टेज की तरह तुम्हारी पैदाइश से पहले सजाई नहीं गई। वो तुम्हारा इंतजार करती है। वो तुम्हारी तरफ झुकती है, सुनती है, एक दोस्त की तरह जो तब तक नहीं हिलता जब तक तुम बोल न दो। वो पूछती है मैं क्या बनूं, और बेइंतहा सब्र से वो वही बन जाती है जो तुम्हारे लिए ठीक हो। ये कोई तशबीह नहीं, ये साइंस है। मादा खुद बेशक्ल रहता है जब तक उसे देखा न जाए। तुम्हारी निगाह से पहले वो सिर्फ इम्कान होता है, लहरों की तरह जो हर सिमत नाचे। देखते ही वो एक शक्ल, एक फॉर्म में ढल जाता है। महसूस हो रहा है? कायनात खुद फैसला नहीं करती कि वो क्या है जब तक तुम आ न जाओ। तुम्हारी निगाह उसका रंग तय करती है, तुम्हारा तवज्जो उसका गीत पैदा करता है। तुम्हारी मौजूदगी रवादारी नहीं, खल्क है। मगर किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं। उन्होंने तुम्हें नक्शे दिए, हुदूद दी, कानून दिए, कहा बस यही हो तुम, इससे आगे नहीं। और तुमने उनकी लकीरें ट्रेस की, ये जाने बगैर कि लकीर खींचने वाली तुम खुद थी। जब तुमने रवादारी की उम्मीद रखी, रवादारी मिल गई। जब तुमने गलत फहमी का डर रखा, लोग गलत समझने लगे। दर्द इसलिए नहीं था कि दुनिया में सिर्फ दर्द है, दर्द इसलिए था क्योंकि तुम्हें दर्द देखने की ट्रेनिंग दी गई थी। फिर भी, अभी भी अनगिनत इम्कानों की वेव तुम्हारा इंतजार कर रही है। कैनवस कभी मुकम्मल तौर पर भर नहीं जाता। याद है जब बाथटब समंदर लगता था, जब कार्डबोर्ड तुम्हारा स्पेसशिप होता था? वो ड्रामा नहीं था, वो तुम्हारी कुदरत थी, बेफिल्टर। तुम तसव्वुर नहीं कर रही थी, तुम पैदा कर रही थी। फिर लेबल्स आए, बहुत एहसासी, बहुत ज्यादा, बहुत खामोश, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की मुसाहिदा करने वाली रूह अपना जादू भूलती गई। मगर जादू मरता नहीं, वो रुक जाता है और फिर सिर्फ एक सांस से वापस आ जाता है। जिस लम्हे तुम याद करती हो
कि तुम्हारा तवज्जो मुक़द्दस है, जादू टूट जाता है। तुम अलग देखना शुरू करती हो और जब तुम अलग देखती हो सब कुछ बदल जाता है। मोहब्बत का सोचो और मोहब्बत आ जाती है। अपनी जगह का सोचो और कमरा नर्म हो जाता है। टूटा हुआ हो के भी अगर तुम रोशनी ढूंढो, रोशनी तुम्हारे पास बैठ जाती है। तुम्हें दुनिया से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस उसे अलग तरह से देखना है। इसी लम्हे तुम दर्द को रिपीट करना छोड़ देती हो और कोड को दोबारा लिखना शुरू कर देती हो। ये वो वक्त होता है जब तुम वो औरत बन जाती हो जो भूल जाने पर भी हिलती नहीं, वो मर्द जो रद्द होने पर भी टूटता नहीं, वो बच्चा जो अभी भी जानता है कि हर जगह हैरत बसी हुई है। तुम अपनी माँ का डर नहीं हो, तुम अपने टीचर की रूल बुक नहीं हो, तुम वो लिबास नहीं हो जो तुमने जिंदा रहने के लिए पहना था। तुम वो हो जो देखती हो और देखना हर चीज को हरकत में ला देता है। सांस लो, इस सच को जिस्म में उतरते हुए महसूस करो, जैसे किसी पुरानी जिंदगी की लोरी, जैसे एक बाग जो हमेशा से तुम्हारा था। तुम गुमशुदा नहीं हो, तुम देर से नहीं आई, तुम्हें बस दोबारा देखने को कहा जा रहा है। और जब तुम देखोगी, दुनिया खुद को बदल लेगी। इसलिए नहीं कि वो बदली, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गई। खुशामदीद। चैप्टर 3, जब इशारा गलत पढ़ लिया जाए। 14 साल की उम्र तक फसाने जख्म बनने लगे थे। जब भी इलारा का जिस्म खुद से निकलकर आजादाना अंदाज में उछलता, बाकी लड़कियां अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाती। उनकी आंखें एक दूसरे की तरफ चालाक मुस्कुराहट से जाती। इलारा ने खुद से कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर हर फसाना उसके अंदर गहरा उतर जाता, जैसे कोई कांटा जो निकलता ही नहीं। घर को जाते हुए उसे लगता दुनिया पहले से ज्यादा खामोश हो गई है। वो रास्ते पर बड़े पत्थर को लटकती हुई चलती, अपने जहन में गूंजते अल्फाज को दबाने की कोशिश करती। पहली दफा उसने सोचा, शायद मुख्तलिफ तरह से नाचना मतलब ये है कि वो नाचने के लिए बनी ही नहीं थी। इसे अपने दिन के सबसे खामोश हिस्सों में उतरने दो, जब ट्रैफिक हल्की पड़ जाए, जब फोन की रोशनी धीमे अंधेरे में घुल जाए, जब खामोशी इतनी गहरी हो जाए कि तुम्हें अपनी बाहों में थामे रखे। यहाँ सांस लो और सुनो। हम एक नाजुक चीज में रहते हैं जिसे राब्ता कहते हैं। हम अल्फाज को कागजी कश्तियों की तरह नदी पर फेंकते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो पूरी शक्ल में दूसरे किनारे तक पहुंच जाएं। मगर अल्फाज डूब जाते हैं, मुरझा जाते हैं। वो हमारी बातों का बोझ उठाने के लिए बहुत छोटे होते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, कभी आलों की गरमाइश नहीं बन सकता। मैं ठीक हूँ, अंदरूनी आंसुओं का समंदर छुपा सकता है। जुबान हमेशा सच से पीछे रह जाती है, जैसे साया जो रोशनी का पीछा नहीं कर पाता। और अक्सर रिश्ते जलालत से नहीं टूटते, वो उन जगहों से दरख्त होते हैं जो नजर ही नहीं आते। एक लम्हा जो जरा लंबा हो गया, एक सांस जो थकान थी,
मगर गलत फहमी में चिड़चिड़ापन समझ ली गई। एक छोटा सा जुमला जो निशान बन गया। धमाका नहीं, बूंद बूंद, आहिस्ता, खामोश, ना महसूस, जब तक एक दिन जमीन हिलती महसूस ना हो। सोचो, आखिरी दफा कब तुम्हें गलत समझा गया था? झगड़ा झगड़ी में नहीं, बल्कि उस खामोशी में जब एक मजाक भर जाता है, उस चुभन में जब एक मैसेज सीन करके भी जवाब नहीं मिलता, उस लफ्ज में जो इतना भी ठीक नहीं लगना चाहिए था जितना लग गया। तुम्हारा जिस्म पहले जानता था, पेट में हल्की सी कशिश, सीने में तंगी, फिर तुम्हारा जहन अपनी कहानी लिखने लगता है। वो परवाह नहीं करते, मैं अहम नहीं हूँ, ये जगह महफूज नहीं। इसी तरह सिग्नल्स गलत पढ़े जाते हैं, तूफान में नहीं, फसाने में। हम अक्सर सामने वाले को नहीं सुनते, हम अपनी यादों के फिल्टर से सुनते हैं। एक जुमला आज का, मगर वो गुजरी हुई सालों की गूंज लेकर आता है। उनका ठहराव तुम्हारे लिए हर उस रद्द की याद बन जाता है जो तुम कभी महसूस कर चुकी हो। उनका लहजा तुम्हारी पुरानी दर्दनाक तारीखों का पुनर्आगाज लगता है। ये कुछ ऐसे है जैसे किसी के साथ नाचना, मगर दोनों अपनी अपनी धुन सुन रहे हों। कदम टकराते हैं, वक्त बिगड़ जाता है। किसी का इरादा बुरा नहीं था, मगर दर्द फिर भी आ जाता है। जिस्म पहले रीएक्टिवेट होता है, कंधे तन जाते हैं, दिल तेज धड़कता है। जिस्म कहता है खतरा, मगर खतरा सामने वाला नहीं होता, वो याद होती है जो उनके लफ्ज ने जिंदा कर दी। और हम परछाइयों से बचाव करने लगते हैं, इसलिए खानदान खामोशी में टूट जाते हैं। दोस्त ना जवाब टेक्स्ट के दरमियान फिसल जाते हैं। महबूब एक दूसरे को खो देते हैं, प्यार के खत्म होने से नहीं, वजहगी के कदम पीछे हटने से। मौजूदगी दवा है, सबसे कीमती तोहफा जो दिया जा सकता है। किसी को देखना ऐसी आंखों से जो कह रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं इस लम्हे को अपनी आवाजों से भर नहीं रही। गलती से निकले लफ्ज भी बहुत नरम हो जाते हैं जब वो मौजूदगी की गोद में गिरते हैं। इसीलिए एक झप्पी वो कर देती है जो हजार अल्फाज नहीं कर पाते। वो जुबान को पार कर जाता है, वो जिस्म को कहता है तुम महफूज हो। मिसफायर्स कभी पूरे खत्म नहीं होंगे, ये इंसानी होने का हिस्सा है, मगर ये गहरी दरारों में बदलने की जरूरत नहीं रखते। एक ठहराव, एक सांस, एक सवाल उन फासलों को भर सकता है जिसे खामोशी तबाह कर देती। दोबारा बताओ, शायद मैं तुम्हें सही नहीं सुन पाई। ज्यादातर लोग हमें दर्द पहुंचाना नहीं चाहते, वो अपने ही शोर में उलझे होते हैं, अपने बोझ में लड़खड़ा रहे होते हैं। कभी कभी उनका वो लड़खड़ाना हमारी जमीन को हिला देता है। तो जब अगला झटका आए, जब खामोशी भारी लगे, जब दिमाग अफसाने लिखना शुरू करे, याद रखना, सफाई शोर में नहीं रहती, वो सामने देखने में रहती है, मुंह फेरने में नहीं। वो नरम सवाल में रहती है, सख्त अंदाजे फरमाइश में नहीं। वो किसी को नए तौर पर सुनने में रहती है, बगैर गुजरे हुए दिनों की गूंज के। हकीकत हमेशा कहानी से नर्म होती है।
चैप्टर 4 स्क्रोल और खुद। 15 साल की उम्र तक इलारा ने हार मान ली। उसने अपनी पूरी कोशिश से बाकी लड़कियों के पोस्चर, उनकी खिंचती उंगलियां, उनके नाप तोल कर उठने गिरने के कदम सब अपना लिए। जब तक वो उनकी कतार में एक साए की तरह गुम न गई। टीचर ने उसकी तारीफ की। उसकी ठीक ठाक हरकतों का सितारा उसके सीने पर लगा दिया, मगर ये तारीफ बोझ थी, जैसे किसी और की कमीज जिसे पहनकर सांस लेना मुश्किल हो। उसके अंदर की चिंगारी और मध्यम हो गई, एक गहरी खामोशी में लिपटकर जिसे अल्फाज छू भी नहीं सकते थे। अब वो तन्हा होकर घूमती नहीं थी। मौसीकी उठती तो उसकी हंसी नहीं उठती थी। मुस्कुराहट सिर्फ माहे बद की तरह दिखती थी, मगर रक्स जो कभी उसकी जान था अब उसका था ही नहीं। अगर तुम एहतियात ना करो, दुनिया तुम्हें तुमसे ही दूर कर देगी। ना तेज धारों से, ना बुरे वादों से, बल्कि चमक से, पिंग्स से, उस फसाने से जो बिलोंगिंग जैसा लगता है। ये चीज तुम्हारे हाथ में समाती है, समुद्री सीपी जैसी नाजुक, लहर जैसी ताकतवर। तुम स्क्रोल करती हो, हर फ्लिक एक रिवायत बन जाता है, जैसे तस्बीह के दाने। दरवाजा खुलता है, फिर एक और दरवाजा, और हर दरवाजे के बाद एक नया रूप, एक नई पहचान, एक नई जिंदगी। तुम गायब हो जाती हो, फिर जन्म लेती हो, अपने कॉफी ठंडी होने से पहले ही 100 मर्तबा। पुराने सूफी इसे समसारा कहते थे, लगातार जन्म बदलने का चक्कर। अब बस वाईफाई लगती है, जिंदगियां नहीं, कुछ सेकंड्स। तुम कभी आशिक हो, कभी तनकीद करने वाली, कभी झांकने वाली, कभी पैगंबर, और फिर एकदम तुम उस रूप को उतार कर दूसरे में ढल जाती हो। स्क्रोल तुम्हें मुकम्मल नहीं करता, वो तुम्हें सिर्फ करीब ले जाता है, मुकम्मल बिलोंगिंग के करीब, करीब पहचान के, करीब मोहब्बत के, मगर कभी पार नहीं जाने देता। सच बोलो, तुम फीड से मोहब्बत नहीं करती, तुम उस शख्स से मोहब्बत करती हो जो तुम उसके अंदर बन सकती हो। साफ सुथरी, तराशी हुई, वैलिडेटेड। कुछ लम्हों के लिए दुनिया तुम्हें तस्लीम करती है, तुम मौजूद लगती हो, तुम अहम लगती हो। फिर खामोशी लौट आती है और तुम फिर स्क्रॉल कर लेती हो। तुम्हें कंटेंट की भूख नहीं, तुम्हें पहचान की भूख है, मगर स्क्रॉल तुम्हें टुकड़ों में बांट देता है। एक लम्हा गम, फिर हंसी, फिर कशिश, फिर गुस्सा, और जिस्म पुराना सच्चा जानता ही नहीं कि उतरना कहाँ है। दोपहर तक तुम थक चुकी होती हो, मेहनत से नहीं, अपनी रूह की लगातार कॉस्ट्यूम चेंजेस से। ये है सच, तुम नहीं चुनती, स्क्रॉल तुम्हारे लिए चुनता है। एल्गोरिदम तुम्हें आशिक की तरह पढ़ता है, तुम्हारी भूख तुमसे पहले जान लेता है, तुम्हें तुम्हारी ही परछाई वापस दिखाकर आगे चलता रहता है। तुम सोचती हो तुम यूजर हो, लेकिन तुम इस्तेमाल होती हो। और फिर भी जिसको तुम ढूंढ रही हो वो कभी वहां रहा ही नहीं। खुदा फीड में नहीं होता, रूहानियत हैशटैग्स में छुपी नहीं, मुकद्दस चीजें खामोशी में होती हैं, उस सांस के नीचे जिसको तुम टालती रहती हो, उस ठहराव में
जिससे तुम भागती रहती हो। सूफी ये जानते थे, वो अपने असरार को ब्रांड नहीं करते थे, अपने सुकून को फिल्टर नहीं लगाते थे। वो बैठते थे, सांस लेते थे, सुनते थे। तो कोशिश करो, डिवाइस नीचे रख दो, बाहर निकल आओ, हवा को अपनी जिल्द छूते महसूस करो। देखो, दरख्त किसी के लिए नहीं झुकते। अपनी निगाह एल्गोरिदम को नहीं, जमीन को दे दो। देखो, वो छोटी सी हिचकी, वो बेचैन हाथ जो फिर स्क्रीन की तरफ बढ़ता है, वो तुम नहीं, वो लूप का भूत है जो अभी भी तुम्हारे निजाम असाब में फंसा हुआ है। हर बार तुम मान जाती हो, तुम एक और जन्म ले लेती हो, एक और मास्क, एक और टुकड़ा। इस चक्कर से निकलने के लिए परफॉर्मर को सुला दो, एडिटर को खामोश होने दो, क्यूरेटर को आराम दो। नीचे, बहुत नीचे एक वो शख्स है जो सिर्फ है, जिसे जिंदा रहने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं, जो कि मुकम्मल है। स्क्रोल नया समसारा है, एल्गोरिदम नया खुदा, और बगावत का एक ही तरीका है, अपनी तवज्जो की इबादत रोक दो। तुम हाईलाइट रील नहीं बनने के लिए पैदा हुई थी, तुम पूरी फिल्म बनने के लिए पैदा हुई। बेकटौती, मुकद्दस, नामुकम्मल, मगर तुम्हारी। सांस लो, स्क्रीन बंद करो, लूप को यहीं खत्म होने दो, क्योंकि रूह स्क्रोल नहीं करती, वो देखती है, वो रहती है, वो याद करती है। और अगर तुम हिम्मत से उस खामोशी में उससे मिल लो, तो शायद तुम उसी सच को पैदा होता महसूस करो जो सबसे ज्यादा याद रखने लायक है। तुम यहाँ बहुत सी चीजें बनने के लिए नहीं आई, तुम यहाँ पूरी बनने के लिए आई हो। चैप्टर 5, लिबास नीचे रखना। जब तक इलारा जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी, वो नकल करने की फनकार बन गई थी। स्टेज पर उसकी हरकतें बेऐब होती थी, उसका अंदाज सराहा जाता, उसके परफॉर्मेंस तालियों के साथ मिलते, मगर हर ताली उसके अंदर खाली गूंजती, जैसे ये शाबाशी किसी और के लिए हो। लंबी मशकों के बाद जब वो आईने के सामने खड़ी होती, उसका अक्स खूबसूरत था, ठीक ठीक था, मगर वो अपने ही चेहरे को पहचान नहीं पाती थी। कहीं न कहीं रक्स के साथ साथ उसने खुद को भी खो दिया था। तुम कभी किसी और के ड्रामा का किरदार बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी, मगर एक स्क्रिप्ट तुम्हारे हाथ में दे दी गई। तुमने ऑडिशन नहीं दिया, तुमने ये किरदार नहीं चुना। वालिदैन, उस्ताद, मुआशरा, सब ने तुम्हारे लिए अल्फाज लिख दिए और तुमने उन्हें इतनी दफा दोहराया कि मास्क तुम्हारी अपनी जिल्द लगने लगा। अपने आप से पूछो, तुम कौन हो? जवाब हमेशा रिहर्स्ड होते हैं। मैं माँ हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं बची हुई हूँ, मैं ये नाम, ये किरदार, ये टाइटल हूँ। मगर ये सब तुम नहीं हो, ये कॉस्ट्यूम्स हैं, आदत बन चुके, कभी कभी गर्माहट देते हुए, मगर गर्माहट सच नहीं होती। तुम अपनी नाकामियां नहीं हो, तुम अपनी कामयाबियां नहीं हो, तुम अपनी तारीख नहीं हो, चाहे दुनिया कितना ही जोर से कहे। ये सब छिलके हैं,
खूबसूरत हो सकते हैं मगर खोखले। असली तुम उन सब से पहले थी, नाम से पहले, लाइब्रेरी के डेस्क से पहले, ग्रेड्स, अप्रूवल, शर्मिंदगी, सबसे पहले। वो साफ, बेदाग, बेकैद तुम दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जब तुम उसे याद कर लेती हो फिर तुम्हें कैद नहीं किया जा सकता, तुम्हें बेचा नहीं जा सकता, तुम्हें पहचाना नहीं जा सकता। आजाद रूह किसी कंपनी का टारगेट ऑडियंस नहीं होती। मगर जब तुम कहती हो मैं मोहब्बत में बदनसीब हूँ, जिंदगी अपनी सारी रोशनियां इस बात को सही साबित करने में लगा देती हैं। जब तुम धीमी सी आवाज में कहती हो मुझे भरोसा मुश्किल से होता है, हर नया रिश्ता उसी जमीन में बीजता है। ये अल्फाज बेजरर नहीं, ये जीते जागते मंतर हैं, बार बार दोहराए गए जब तक ये दीवार न बन जाए। रूहानी दुनिया भी कभी कभी चमकते पिंजरे देती है। एम्पैथ, हीलर, लाइट वर्कर, सुनने में नूरानी मगर लेबल्स बनकर ये भी जकड़ देते हैं। मुलायम पिंजरा भी पिंजरा होता है। तुम किसी ब्रांड बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी, तुम पूरी बनने के लिए पैदा हुई थी। याद करो, परफॉर्मेंस से पहले, लाइन से पहले, उससे भी पहले कि किसी से इजाजत लेनी पड़ती। एक लकड़ी तलवार बन गई। आंसू बिना माफी के गिरते थे, हंसी बेहिसाब निकलती थी। कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ जिंदगी, खालिस, बेपर्दा। फिर तराशना शुरू हुआ, रोका गया प्यार, सख्ते कानून, मास्क नीचे दबाया गया, जब तक तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी अपनी जिल्द है। और अब सालों बाद तुम महसूस करती हो वो घबराहट जो खामोशी में उठती है, वो भूख जो तस्दीक के लिए लिपट जाती है, वो दर्द जो सिर्फ उन आईनों में नजर आता है जहां तुम अपने आप को ढूंढ रही होती हो। मगर आईने रूह नहीं देखते और तुम उनसे बार बार ये उम्मीद करती हो। ये सच है, वो ढांचा जिसे तुम मैं समझ रही हो हकीकत नहीं, ज्यादातर तुम्हारी वो स्ट्रैटेजी है जिससे तुमने बचना सीखा था। मास्क को ही जान समझ लिया तो फिर याद कैसे आए? इतनी देर खामोशी में बैठो कि वो जला दे। एक दिन के लिए अपनी पहचान बयान करना छोड़ दो। वो जुमला बीच में रोक दो जहां तुम परफॉर्म करना शुरू कर देती हो। खामोशी को बोलने दो, अधूरे लफ्ज को सांस लेने दो। और इस कच्चेपन में कुछ बहुत पुराना जागता है, एक गूंज, एक गर्माहट, वो जो हमेशा यहाँ था, वो जो मुकम्मल है। तुम्हें ऊंचा उठने की जरूरत नहीं, शो को बेहतर बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस स्टेज से उतरना है। रोशनियां धीमी होने दो, मास्क को फिसलने दो, और जब कोई पूछे तुम कौन हो, तो आंखों को नरम होने दो, होठों को धीमे से कहने दो, मुझे नहीं पता, मगर अब मैं काफी हकीकी हूँ कि ढूंढ सकूं। और शायद पहली दफा कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, सिर्फ होना, नंगे पांव, बेनाप, मुकम्मल। महसूस करो, जमीन तुम्हारे पांव के नीचे, धूप तुम्हारे गाल को चूमती हुई,
कोई ऑडियंस नहीं, कोई लाइंस नहीं, सिर्फ धड़कन और सांस। और जब आंसू भर आए, वो गम नहीं होते, वो पहचान होती है। वो आजादी जिसके लिए तुम तड़पती रही, वो मोहब्बत जिसे तुमने मुश्किल समझा, वो खूबसूरती जिसे तुमने कमाई समझा, सब हमेशा यही था, लिबास के नीचे। चैप्टर 6, तुम्हारे अंदर का रक्स। वो लम्हा जब सब टूट गया, बिना किसी चेतावनी के आया। परफॉर्मेंस के दरमियान जलता हुआ स्टेज उसके ऊपर चमक रहा था, जब अचानक इलारा के सीने में सख्त कशिश हुई। उसके बाजू नीचे गिर गए, टांगें लरसकर दुखम हो गईं और वो स्टेज के फर्श पर ढेर हो गई। जैसे होठों पर हाय ताजुब की लहर पूरे ऑडियंस में फैल गई हो। मगर ये थकान नहीं थी जो उसे गिरा रही थी, वो इसलिए गिर गई कि उसे याद ही नहीं रहा था कि अपने जिस्म में अपनी तरह कैसे रहना है। पहली दफा उसने खालीपन को छुआ, रक्स के बगैर एक रक्कासा। कुछ रातें बहुत भारी होती हैं, खामोशी तसल्ली नहीं देती, वो घुटन बन जाती है। तुम बिस्तर पर पड़े जागती रहती हो, पुरानी बातें स्क्रॉल करते हुए, अपने आप को कहकर कि ये बस वक्त गुजर रहा है। मगर सबके नीचे एक भूख होती है, उस प्यार के लिए जो खो गया, या उस खुद के लिए जिसे तुम पीछे छोड़ आई। दर्द जिस्म का किराएदार बन जाता है, पेट में गिरह बनाता है, सीने को तंग करता है और बहस को फटे हुए रिकॉर्ड की तरह दोहराता रहता है। वो अल्फाज जो कहने चाहिए थे और वो जो नहीं कहने चाहिए थे, दोनों का लूप चलता रहता है। और फिर भी तुम यहाँ हो, सांस लेती हुई, सब कुछ उठाए हुए। यही पुराने निशान जगते हैं, यिन यांग। खूबसूरत टैटू नहीं, तुम्हारे अंदर चलती क़ुव्वतें। यिन नरमी, क़बूलियत, वो हिस्सा जो संभालना चाहता है और संभाला जाना चाहता है। यांग आग, हद, वो आवाज जो कहती है बस। तुम ये रक्स जानती हो, यिन वो लंबी रात होती है, वो इंतजार जिस कॉल का कोई जवाब नहीं आता, वो पैगाम जो तुम लिखकर मिटा देती हो, वो बोझ जो तुम किसी और का उठाती हो जब तुम्हारा अपना दिल टूट रहा होता है। यांग वो दिन होता है जब तुम नंबर ब्लॉक कर देती हो, वो हल्की सी फिसा, मैं ज्यादा की हकदार हूँ, वो वक्त जब तुम राख से उठती हो। मकसद कभी ये नहीं था कि एक को चुनो, यिन के बगैर तुम पत्थर बन जाती हो, रिश्तों की गर्माहट समझने से कासिर। यांग के बगैर तुम मिट्टी बन जाती हो, अपनी हिफाजत के बगैर बिखरते हुए। दोनों दुश्मन नहीं, दोनों एक दूजे को मुकम्मल करते हैं। इधर उधर देखो, फितरत भी ये कह रही है, रात और दिन, लहर और किनारा, सांस अंदर, सांस बाहर, दुश्मनी नहीं, शरीकत। तुमने अपने जिस्म में भी महसूस किया है, शावर में गिरते आंसू, जहां बेधिक लगती हंसी अचानक उभर आती है। वो वक्त
जब तुम किसी को छोड़ कर आते हो जो तुम्हें दर्द देता था, मगर सीना फिर भी उनका नाम याद करता है। ये ही यिन और यांग का रक्स है, मिटता नहीं, घूमता है। सोचो उस शिफा देने वाली शख्सियत का, शायद तुम खुद का, जो सबका दर्द अपने जिस्म में भर लेती हो, अपना रखने की जगह ही भूल जाती हो। ताकत उनके लिए, नरमी उनके लिए, मगर तुम्हारा कौन? दुनिया ने तुम्हें दो रास्ते दिए, मजबूत बनो या नरम, खुद को बचाओ या पूरा प्यार करो, मगर ये झूठ था। असली पूरापन किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि रक्स बन जाने में है। तसव्वुर करो, सुबह का उजाला, कमरा खामोश, तुम फोन नहीं उठाती, तुम बैठती हो, सांस लेती हो। यिन सुबह को उस जैसी है वैसा कबूलने का हौसला, यांग खुद उठकर चलने का इरादा, ताकि वो नरमी साथ ले जा सको। ये ही रक्स है। हर टूटे रिश्ते ने तुम्हें सिखाया है। यिन जख्म को सांस देता है, यांग निशानों को कुव्वत बनाता है। यिन हाँ कहती है कपकपाते हुए भी, यांग ना कहती है जब चक्रे को रुकना होता है। दोनों एक ही सांस में तुम्हें संभालते हैं। और जो लोग ये रक्स सीख लेते हैं, उनमें एक गहरा जलवा होता है, हुस्न से ज्यादा गहरा। वो कशिश जो तूफान झेल कर निकलने से आती है। तुम भी वैसी हो, हमेशा से हो, लिबासों के नीचे, टूटे दिल के नीचे, कुर्बानियों के नीचे। तुम हो पूरी, काबिले यकीन। यिन कमजोरी नहीं, यांग सख्ती नहीं। यिन वो पानी है जो ठंडक देता है, यांग वो आग है जो हिफाजत करती है। तुम कभी एक को चुनने के लिए पैदा नहीं हुई थी, तुम दोनों बनने के लिए पैदा हुई थी। राज ये है, ये कभी अलग थे ही नहीं, कभी मुख्तलिफ नहीं, कभी जिद में नहीं। ये एक ही सांस है, एक ही समंदर, बस मुख्तलिफ चांद के नीचे हिलता हुआ। रक्स कभी तवाजुन का नहीं था, ये हमेशा याद करने का था कि तुम खुद रक्स हो। और जब ये याद जागती है तो घर लौटने जैसा लगता है। चैप्टर 7, जब छोड़ देना ही आजादी दे। जब वो वहां पड़ी लरज रही थी, स्टेज धुंधला सा लगने लगा। धुंध के बीच से एक छोटी सी शक्ल उभरी, नंगे पांव, हंसी से चमकती आंखें, खुशी से भरपूर। वो उसकी 3 साल की अपनी ही रूह थी, जो स्टेज पर टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई हर कदम में रोशन खुशी बिखेर रही थी। वो बच्ची उसके पास झुक कर बैठी, उसका हाथ छुआ और धीमी सी आवाज में कहा, तुम भूल गई थी, मगर मुझे याद है। ये लफ्ज इलारा के दिल को चीरते हुए गुजरे। शर्म भी लाई, उम्मीद भी। तुम जानती हो ये एहसास। सब कुछ संभालते हुए भी कोई तुम्हारी कांपती हुई उंगलियों को नहीं देखता। मुस्कुराहट, छोटी सी हंसी, मसरूफ कैलेंडर। मैं ठीक हूँ, तुम कहती हो, जबकि सीने के नीचे खामोशी का बोझ धड़क रहा होता है। डर बहुत चालाक होता है। वो चीखता नहीं, वो अपनी शक्ल, एहतियात, जिम्मेदारी, दानाई बनाकर दिखाता है। वो फसाने से कहता है, और ज्यादा पकड़ कर रखो,
और ज्यादा कंट्रोल करो, यही महफूज हो। मगर असल में वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर रहा, वो तुम्हें कैद कर रहा है। तो तुम और कस के पकड़ती हो उन रिश्तों को जिनमें गर्मी पहले ही मर चुकी है। उन गुफ्तगुओं को फिर दोहराती हो जैसे सही जुमला एंड बदल देगा। उन नौकरियों में रुकी रहती हो जो रूह को जर्द कर देती हैं, और उसे तुम सिक्योरिटी का नाम दे देती हो। तुम धोखे पहुंचाती तस्वीरें भी बनाती हो, इतनी साफ मास्क पहनती हो कि तुम खुद तक भूल जाती हो कि ये मास्क है। दिमाग भी डर का साथी बन जाता है। एमिगडाला पूरी दुनिया को इस तरह एडिट करता है कि वो तुम्हारी बेचैनी का आईना बन जाए। किसी को खोने का डर, हर खामोशी रद्द लगती है। नाकाम होने का डर, हर दरार गिरावट जैसी लगती है। डर निगाह को तंग कर देता है, जिंदगी पीप होल बनकर रह जाती है। और ज्यादा कस के पकड़ना डर को मिटाता नहीं, वो उसे और भड़काता है। दुनिया और छोटी हो जाती है। हकीकत ये है, जिस जिंदगी को तुम इतनी जोर से पकड़ रही हो, शायद वो तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। जिंदगी नहीं, बस जिंदा रहना। थकान सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी। मैंने औरतों को ऐसे जीते देखा है, रोज इमरजेंसी ड्रिल की तरह भागती हुई, मुस्कुराहट से हाँ कहती हुई, जब उनका दिल ना लिख रहा होता है। कैलेंडर सीधा, खाना बढ़िया, काम बेइम्तियाज, मगर अंदर से खोखला सा। फिर एक दिन कुछ टूट जाता है, कोई खो, कोई तलाक, कोई बीमारी, या बस वो पल जब सालों तक पहना आर्मर उन्हें गिरा देता है। और उस टूटने में कुछ बदल जाता है। पकड़ ढीली पड़ती है, जिस्म नर्म होता है, सांस वापस लौट आती है। ये शायरी नहीं, ये बायोलॉजी है। नफ्सियाती निजाम अपने तार दोबारा जोड़ रहा होता है। धुंध उठ जाती है, दिमाग फिर से इम्कानों से चमकने लगता है, और अचानक दुनिया वापस नजर आती है। अजनबी की मेहरबान निगाह, धूप का तुम्हारे कंधे को गरम करना, एक गीत जो लगता है तुम्हारा नाम पुकार रहा हो। ये सब हमेशा यही थे, तुम बस देख नहीं सकती थी, कस के पकड़ने की वजह से। छोड़ देना ये अमन की गारंटी नहीं। तुम्हें रिश्ता खोना पड़ेगा जो सिर्फ सिलाइयों से जुड़ा हुआ था। नौकरी खोना पड़ेगी जो तुम्हें छोटा रखती थी। वो पहचान खोना पड़ेगी जो सब कुछ संभाल लेती है। मगर तुम वो भी खो दोगी जो तुम्हें बर्बाद कर रहा था। पेट की वो गिरह, जबड़ों का वो बोझ, वो रातों के डायलॉग्स जिनके जवाब कभी नहीं आते। तुम गिरह छोड़ दोगी, वजन उतार दोगी, दिमाग पुरानी धुन पर लौटने की कोशिश करेगा। जाना पहचाना हमेशा महफूज लगता है, चाहे वो तुम्हें दर्द ही क्यों न दे। मगर कदम ब कदम तुम उसे नया रास्ता सिखाती हो। ये तशबीह नहीं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दिमाग का अपने आप को भरोसे की तरफ दोबारा बनाना। और एक दिन तुम महसूस करती हो, डर अभी भी है, मगर अब गाड़ी नहीं चला रहा। उसकी आवाज गूंज है, हुक्म नहीं। वहां तुम्हें नजर आता है, जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। वो इंतजार कर रही थी तुम्हारी मुट्ठी खुलने का,
तुम्हारे मास्क नीचे रखने का, तुम्हारे बिना आमर के दुनिया में कदम रखने का, नर्म लेकिन हकीकी। और जब तुम करती हो, रोशनी तुम्हें मुख्तलिफ लगती है। हंसी उन जगहों से उभर आती है जहां का तुमने दरवाजा सालों पहले बंद किया था। तुम्हारा अक्स आईने में तैयार नहीं होता, वो सांस लेता है। और ये तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत तरह से तोड़ देगा, क्योंकि तुम समझ जाती हो जिंदगी का मकसद डर को मिटाना नहीं था। डर दुश्मन कभी नहीं था, वो सिर्फ याद दहानी थी कि तुम सांस लेना भूल गई थी। मकसद डर भगाना नहीं, जिंदगी को जगह देना था। और इस लम्हे में तुम वो चीज महसूस करती हो जिसके बगैर तुम कभी जीने के लिए बनी ही नहीं थी, आजादी। चैप्टर 8, वो बेहतरीन चीज जो कभी हुई ही नहीं। बच्ची ने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और इलारा ने उसे पकड़ लिया, हाथ कपकपाते हुए भी। दोनों धीरे धीरे खड़ी हो गई। छोटी लड़की आजादी से घूम रही थी, उसकी हरकतें बेतरतीब, बेनकाब, जिंदा। इलारा ने उसका पीछा किया। उसका जिस्म ढीला पड़ा, उसकी मांसपेशियां कुछ बहुत पुराना याद करने लगी। सालों में पहली दफा उसने अपने आप को कैद से आजाद हरकत करने दिया। दिल की धड़कन के इशारे पर स्टेज फिर से जिंदा हो गया और एक पल के लिए वो मुकम्मल महसूस हुई। सोचो उस नौकरी के बारे में जिसके लिए तुमने दिल से दुआ की थी। तुमने खुद को उस डेस्क पर बैठा देखा था, अपना नाम दरवाजे पर। महसूस किया था कि ईमेल के नीचे तुम्हारी सिग्नेचर ही तुम्हारी पहचान होगी। ये सिर्फ काम नहीं था, ये सबूत था। सबूत के इंतजार, मेहनत, कुर्बानी का कोई हिसाब बनता है। फिर एक ईमेल आई, छोटी सी, मुअद्दब। हमने एक दूसरे कैंडिडेट का इंतखाब किया है। जो मुस्तकबिल तुमने जहन में सजा दिया था, फट गया। खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा भारी लगने लगी। मगर 2 साल बाद तुम एक नए शहर में थी, नए दफ्तर में, उन शहरों के बीच जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लंच पर तुम्हारी मुलाकात एक कलीग से हुई जो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त बना। उसी दोस्त ने तुम्हें उस शख्स से मिलवाया जिसके साथ तुम आज जिंदगी बांट रही हो। जो नौकरी तुम खो बैठी, वो सपना नहीं था, वो सिर्फ भंवर था जिसने रास्ता साफ किया उन चीजों के लिए जो असल में तुम्हारी थी। मोहब्बत में भी यही होता है। वो शख्स जिसके साथ तुमने हमेशा का प्लान बनाया था, उसकी कॉफी, उसकी हंसी, वो बच्चों के नाम जो कभी पैदा ही नहीं हुए। फिर एक दिन उन्होंने कहा उनके एहसास बदल गए हैं और वो चले गए। मगर सालों बाद तुम एक छोटी सी किचन में खड़ी थी। हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। तुम्हारा हमसफर तुम्हारे बच्चे को बाहों में लिए धीरे धीरे घूम रहा था। कमरा हंसी से भर गया और तुम्हें महसूस हुआ तुम पूरी जिंदगी खो देती अगर वो पहली मोहब्बत रुक गई होती। जो अंजाम लग रहा था, दरवाजा था। जहन प्लानों को पसंद करता है। वो कहानियां बनाता है ताकि अपनी जान को महफूज महसूस कर सके।
और जब जिंदगी बीच में आ जाए, जिस्म रिएक्ट करता है जैसे तबाही आ गई हो। एड्रेनलिन भर जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, पर जो तुम महसूस करती हो वो नाकामी नहीं, वो तुम्हारे दिमाग का नया मुस्तकबिल तसव्वुर करने की कोशिश है। कोई भी नुकसान सिर्फ नुकसान नहीं होता, वो रीअरेंजमेंट होता है। जो अपार्टमेंट तुम नहीं ले पाई, वहां उस बिल्डिंग में तुम्हारी बिजनेस पार्टनर रहती थी। वो रिश्ता जहां तुमने प्रपोज होने का इंतजार किया, उसकी जगह वो सुबह का समंदर था जहां कोई और जानकर समझकर हर रोज तुम्हारा इंतखाब करता है। जिंदगी तुम्हें वो देती है जो तुम्हें वाकई चाहिए, पहले वो चीज लेकर जिसे तुम समझती थी कि तुम्हारी जरूरत है। और तुम उस लम्हे में ये नहीं देख सकती, वहां सिर्फ बंद दरवाजा होता है, मगर बाद में नक्शा समझ आ जाता है। हर गलत मोड़, हर छूटी हुई एग्जिट तुम्हें यहीं ला रही थी। हकीकत ये है, जो चीज तुम्हारे लिए है वो गायब नहीं होती, वो खत्म नहीं होती, वो रुककर वेट करती है। वो तब आती है जब तुम्हारे अंदर का वो रूप उसे संभालने के काबिल हो जाए। एक दिन तुम कॉफी पियोगी या सड़क पर चल रही होगी और एक खामोश सा एहसास आएगा, चीख नहीं, बस हल्की सी फिसा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो कामयाब नहीं हुआ। नाकारापन नहीं, मजबूरी नहीं, शुक्रगुजारी, क्योंकि अगर वो हो गया होता, तुम यहाँ न होती, ये जिंदगी ना होती, ये मोहब्बत ना होती, ये तुम ना होती। और तब तुम्हें समझ आएगा, जो बेहतरीन चीज तुम्हारे साथ कभी हुई, वो असल में वो थी जो कभी हुई ही नहीं। चैप्टर 9, गम का सफर। बच्ची ने इलारा का हाथ पकड़ा और उसे एक पुरानी याद में ले गई, जहां 14 साल की इलारा खड़ी थी। गालों पर जलन और बाकी लड़कियां उसकी पीठ पीछे हंसी और फसाने कर रही थी। उस लड़की की आंखें शर्म से बोझल, उसका जिस्म झुककर जैसे अपना ही साया बनकर गायब हो जाना चाहता हो। बालिग इलारा और वो छोटी बच्ची उसके सामने रक्स करने लगे, आजादी और बगावत के हर एक इशारे को चलती हरकतों में पिरोते हुए। धीरे धीरे उस लड़की की शक्ल बदलने लगी। उसकी ठुड्डी उठी, आंखों से आंसू बहने लगे और वो रक्स में कदम रखती हुई अपना वो हिस्सा वापस लाई जो कभी उससे छीन लिया गया था। गम दरवाजा नहीं खटखटाता, वो तमीज से इंतजार नहीं करता, वो अचानक आ जाता है, जिंदगी की आम लय को चीर कर। एक लम्हा तुम कॉफी हिला रही होती हो और अगले लम्हे तुम्हारा सीना किसी अजीज की कमी से दर्द करता है। वो बड़े मौकों का इंतजार नहीं करता, वो कपड़ों को वजर करते हुए आ जाता है। ट्रैफिक लाइट की आंख झोंक में, तुम्हारी सांस की गूंज में, और अचानक सब कुछ बदला हुआ लगता है, भारी, खामोश, ठहरा हुआ। लोग मदद करना चाहते हैं, वो वही अल्फाज दोहराते हैं जो उन्होंने कभी सुने होते हैं। वक्त जख्म भर देता है, वो बेहतर जगह पर है, मगर ये जुमले बारिश में भीगी कागजी कश्तियों की तरह टूट जाते हैं, क्योंकि वक्त जख्म नहीं भरता,
वक्त बस ये सिखाता है कि वो बोझ कैसे उठाया जाए जो धरा ही नहीं जा सकता। गम घुटन बन जाता है जब तुम गुजरी हुई चीजों को मुट्ठी में कस कर पकड़ लेती हो। किसी अनवॉश्ड कमीज की खुशबू, कुर्सी का वो निशान जहां वो बैठते थे, वो गाना जो एक पल के लिए तुम्हें धोखा देता है कि शायद वो दरवाजा खोलकर लौट आए। मगर छोड़ देना खो देना नहीं होता, ये सिर्फ पकड़ को ढीला करना होता है ताकि मोहब्बत नई शक्ल इख्तियार कर सके। वो मिट नहीं जाते, वो तुम्हारी हिम्मत में घुल जाते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी उन बातों में जो तुम किसी और को तसल्ली देते वक्त कहती हो। वो तुम में सिवाले जाते हैं। शुरू में गम मेहमान नहीं, दुश्मन जैसा लगता है। तुम इसे दबा देना चाहती हो, इससे भागना चाहती हो, आवाजों में डुबा देना चाहती हो। मगर गम तुम्हें तकलीफ देने नहीं आता, वो सबूत होता है। सबूत कि जो तुम्हारे पास था वो इतना हकीकी था कि तुम्हें हमेशा के लिए बदल गया। गम दुश्मन नहीं, वो मोहब्बत का साया है, और जितनी गहरी मोहब्बत होती है उतनी लंबी उसकी परछाई। पहली दफा जब तुम फिर से हंसते हो तो शर्म की हल्की सी पसाने तुम्हें बेवफा महसूस करवा सकती है। मगर गम और खुशी दुश्मन नहीं होते, वो जुड़वे सच हैं। हंसी भूल जाना नहीं होता, वो इज्जत देना होता है। वक्त के साथ गम बदलता है, तेज धाराएं नर्म धड़कनों में बदल जाती हैं, कभी हल्की कभी अचानक। ये नाकामी नहीं होती, ये वही मोहब्बत होती है जो अब भी बोल रही होती है। फिजिक्स भी यही कहती है, एनर्जी कभी मिटती नहीं, बस अपनी शक्ल बदलती है। वो मोहब्बत जो उनकी आवाज, उनके टच से बोलती थी, अब भी मौजूद है, बस यादों, असर और तुम्हारे जरिए चलती है। काम ये नहीं कि तुम गम से ऊपर उठ जाओ, काम ये है कि तुम इसे खूबसूरती से उठाना सीखो, इसे तुम्हें गहरा बना लेने दो, फजूल चीजें उतार लेने दो, सिर्फ वो रहने दो जो असल है। एक दिन तुम खुद को वो करते पकड़ोगी जो वो पसंद करते थे, उनका खाना पकाना, किसी की मदद कर देना, वहां सच बोलना जहां खामोशी आसान होती, और तुम्हें एहसास होगा तुम नकल नहीं कर रही, तुम जारी रख रही हो। वो पास्ट में जमे हुए नहीं, वो जिंदा है, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी चॉइसेस में। गम खत्म नहीं होता, वो तुम्हारी कहानी का धागा बन जाता है, दिल की बुनाई, टेक्सचर, फुल स्टॉप नहीं। और एक दिन जब कोई बेनाम सा एहसास तुम्हारे दिल को छू कर गुजरे, तुम आंखें बंद करोगी और पहचान लोगी, वो कभी गए ही नहीं, वो यही हैं, और तुम दोनों अभी भी साथ चल रहे हो। चैप्टर 10, दोबारा शुरू करने का हौसला। फिर उन्होंने एलारा का वो 15 साल का रूप देखा, सख्त जैसे मशीन हो, जिसका हर कदम हिसाब से बंधा हुआ, जिसकी खुशी बिल्कुल बुझ चुकी हो। वो उन दोनों को खाली आंखों से देख रही थी, एक ऐसी परफॉर्मेंस में फंसी हुई जो उसकी थी ही नहीं। छोटी बच्ची उसके गिर्द दीवानगी से रक्स कर रही थी,
उसे वो आजादी याद दिलाते हुए जो कभी उसकी रग रग में बहकती थी। बालिग इलारा हल्की सी आवाज में बोली, तुम्हें उनका आईना बनकर जीने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उस जवान इलारा का सख्त लिबास टूटने लगा। जिस्म पहले लड़खड़ाया, फिर नर्म पड़कर फिर से जिंदा हरकत में बहने लगा। एक वक्त आता है जब दिखावा खुद ही खत्म हो जाता है। ना कोई अलार्म, ना कोई ऐलान, बस एक खामोश सा एहसास कि जो स्क्रिप्ट तुम बरसों से पढ़ रही थी वो अब तुम्हारी है ही नहीं। ये नई शुरुआत नहीं, ये समझदार शुरुआत है। तुम इब्तिदा में टूटी हुई नहीं होती, तुम तजुर्बों से तराशी हुई होती हो। हर गलत चुंबन, हर अनछीनी हद, हर वो माफी जो सिर्फ जज्बात रखने पर मांगी गई। दर्द सिर्फ टीचर नहीं था, दर्द तुम्हारा स्कल्प्चर था। जिस जिंदगी को तुमने खो दिया वो कभी तुम्हारी जिंदगी थी ही नहीं। वो सिर्फ पिंजरा था जो आराम की शक्ल में लपेटा गया था। जब तुम दूर चल दी, तुम सिर्फ उन्हें छोड़कर नहीं गई, तुम उस रूह को छोड़ आई जो चुप रहती थी, जो मोहब्बत और जिंदा रहने को गलत समझ बैठी थी। क्लोजर हमेशा तोहफा नहीं होता, कभी क्लोजर भी एक जंजीर होता है। आजादी तब आती है जब तुम समझना बंद कर देती हो, जब तुम बीच जुमले में चल देती हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि कहानी खत्म हो चुकी है। हर वो अंजाम जिससे तुम डरती हो सजा नहीं होता, बुलावा होता है। जिस दिन उन्होंने कॉल करना छोड़ दिया, तुमने अपना वक्त वापस ले लिया। जिस दिन उन्होंने हाथ छोड़ा, तुमने अपनी रूह का सुकून वापस लिया। ये नुकसान नहीं, ये कुव्वत है। तुम्हारा नया रूप अब इजाजत नहीं मांगेगा। तुम जिंदगी पैरेंथेसिस में नहीं गुजारोगी। तुम शैंपेन उन लोगों के लिए नहीं डालोगी जो तुम्हारी मेज पर जगह के ही लायक नहीं थे। नया बनना भागना नहीं होता, घर लौटना होता है। सबूत कि तुमने झेला, तुम्हें कम समझा गया, मगर तुम फिर भी उठी। सबूत कि तुम्हें अब किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें याद आ गया तुम किस चीज की हकदार हो। एक दिन तुम आईने में देखोगी और साफ समझ जाओगी, तुम कोई बर्बाद इमारत नहीं जिसे दोबारा बनाना हो। तुम खुद जलजला हो, आग हो, तूफान हो, जिसने नई जमीन का दस्तूर तय किया। तुम पर होने वाली चीजों से नहीं, उनके बाद तुम क्या बनी इससे पहचानी जाओगी। जिस दिन तुम खुद को चुनती हो, वो ड्रामा नहीं, वो बहुत खामोश होता है। यू अप का मैसेज बेजवाब छोड़ देना, वो प्लान्स कैंसिल कर देना जो रूह को थकाते हैं बगैर शर्मिंदगी के। ये पहचान लेना कि तन्हाई तन्हाई नहीं होती, वो सुकून होता है। तुम किसी को अफसोस महसूस कराने के लिए यहाँ नहीं हो कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। तुम यहाँ हो खुद को फक्र से देखने के लिए कि तुम चली गई। ये ही जीत है। हकीकत ये है, तुम हमेशा इनाम थी। वो तुम्हें इसलिए नहीं गिरा बैठे कि तुम कम कीमती थी, वो इसलिए गिरा बैठे कि वो उस चीज को पकड़ नहीं पाए जो सच्चाई मांगती थी। वो उस रूह को संभाल नहीं पाए जो बहुत हकीकी थी। और ये तुम्हें रोशन बनाता है। दोबारा जन्मी हुई तुम
ना छुए जाने वाली हो। इसलिए नहीं कि तुम दूर हो, बल्कि इसलिए कि तुम हिलती नहीं। तुम सवाल नहीं, तुम निशाने ताज्जुब हो। तुमने सोचा तुम जिंदगी दोबारा बना रही हो, मगर तुम खुद को बना रही थी। दीवारें मजबूत, बुनियाद गहरी, ताले ऐसे जो अंदर से ही खुले। हौसला डर का ना होना नहीं, हौसला ये कहना है मैं वहां नहीं रहूंगी जहां मेरी जरूरत ही नहीं। डर फसाने करेगा, मगर आजादी भी करेगी। और जब तुम दोनों में फर्क पहचान लोगी, तुम फिर कभी हिचकिचाओगी नहीं। ये वापस आना नहीं, ये दोहराना नहीं, ये इंतकाम नहीं, ये तरक्की है। और इसका राज सिर्फ तुम्हारे पास है। चैप्टर 11, ख्वाहिश और सच का जज्बाती खिंचाव। एक और याद में नौजवान इलारा स्टेज पर खड़ी थी, बेऐब, सराही हुई, मगर उसकी मुस्कुराहट रंग की थी, उसकी आंखें खाली। वो छोटी बच्ची और बालिग इलारा को एक साथ रक्स करता देख रही थी। चेहरे पर बेइंतहा तमन्ना लिखी हुई थी। बच्ची ने अपना नन्हा सा हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे याद दिलाती हो कि लय असल में यही रहती है। बालिग इलारा ने फसाने से कहा, तुम उनकी तालियों से ज्यादा हो। और एक लर्जे के साथ परफॉर्मर का मास्क नीचे गिर गया। सालों में पहली दफा वो उन पर साथ घूम उठी, पूरी एक मर्तबा फिर से। हर जज्बा एक सिग्नल होता है, कमजोरी नहीं, खामी नहीं। एक तूफान जो जिस्म से गुजरता हुआ वो सच ले जाता है जिसे तुम्हारा दिमाग मानता नहीं। आंसू कमजोरी नहीं होते, ये प्रेशर वॉल्व होते हैं, वो सच छोड़ते हुए जो लफ्जों में ढलने के लिए बहुत भारी होते हैं। अगर तुम उन्हें नजरअंदाज करती हो तो तुम फायर अलार्म को बंद कर देती हो, जबकि धुआं अभी भी भर रहा होता है। ख्वाहिश भी इसी कुदरती कानून पर चलती है। वो चेहरे के नक्शों या सिमेट्री का खेल नहीं, वो एक कशिश है, ग्रेविटी। कुछ लोग कमरे में दाखिल होते ही बिना एक जुमला बोले सब निगाहों का रुख बदल देते हैं। ये जादू नहीं, ये मौजूदगी है, एतमाद, जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा। और ये उम्र के साथ मुरझाता नहीं। बेऐबी बहकाती नहीं, मौजूदगी बहका देती है। ख्वाहिश में तवाजुन जरूरी होता है। ज्यादा कुर्बत आग घुट जाती है, ज्यादा फासला शोला बुझ जाता है। सोचो उस लम्हे का जो चुंबन से पहले होता है, वो ज्यादा गर्म होता है खुद चुंबन से। वो खामोशी जो जवाब से पहले होती है, वो उन अल्फाजों से ज्यादा बोलती है जो बाद में आते हैं। फस्ल से मोहब्बत तेज होती है, मौजूदगी उसे जिंदा रखती है। ख्वाहिश दोनों के दरमियान सांस लेती है। बाउंड्रीज दीवार नहीं होती, वो मुलायम रेशम की रस्सी होती है। हर कोई अंदर आने के लायक नहीं। जो शख्स अपने आप को तुम्हारे लिए मिटाता जाए, वो धीरे धीरे धीमी रोशनी की तरह फीका पड़ जाता है। मगर जो अपनी बात पर कायम रहे, जो तुमसे भी ये उम्मीद रखे कि तुम उसके बराबर उठकर चलो, वो भूलता नहीं।
ना कहना दूर नहीं करता, वो खींचता है। डिसिप्लिन झुक सकता है, ख्वाहिश चलती रहती है। विल पावर वजन उठाते हुए कांपते बाजुओं की तरह थक जाता है, मगर ख्वाहिश वो खुद खींचती है, बगैर मेहनत के। तुम्हें किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती। सुबह के पहले पहर तक जागने के लिए अगर कोई तुम्हारी रूह को जिंदा कर दे। मुस्तकबिल उन्हीं का होता है जो अपने प्यार की ग्रेविटी से खींचे जाते हैं। जान पहचान की गहराई भी यही कानून बताती है। जिस्मानी ताल्लुक बिना रूहानी रब्त सिर्फ फ्रिक्शन होता है। जिस्मानी ताल्लुक रूहानी रब्त के साथ बिजली। सबसे गहरा जोश जिस्म में नहीं होता, वो देखे जाने में होता है। राज भी जरूरी है, गेम्स नहीं, झूठ नहीं, बस लय। अपने पसंदीदा गीत का सोचो। अगर कोरस बहुत जल्दी आ जाए तो गीत गिर जाता है। कशिश खुलकर देखने में नहीं, उस वक्त तक लफ्ज रोके रखने में है जब तक नोट पूरा दिल में उतर न जाए। ख्वाहिश शिफा भी देती है। टूटा दिल दोबारा चाहने को खतरनाक समझता है, मगर किसी गम के बाद जब हंसी वापस आती है, वो फिर से फूंक भरने जैसा होता है। मोहब्बत को कसम खाकर छोड़ देने के बाद जब पहली बार हल्का सा अट्रैक्शन जागता है, ये सबूत होता है कि तुम अब भी जिंदा हो। ख्वाहिश तुम्हारे जख्मों से बेवफा नहीं होती, वो उनके जिंदा बच जाने का इनाम होती है। और सच सच सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। हुस्न मर जाता है, कमल टूट जाता है, मगर सच सच हिलता नहीं। एक सीधी सी इकरार जो बिजली सी गूंज रखती है, अल्फाजों की वजह से नहीं, उस खतरे की वजह से जो उसमें छुपा होता है। असलियत को नकली नहीं बनाया जा सकता, वो अपने आप में बेहद दिलकश होती है। याद रखना, जज्बात खराबी नहीं होते, वो रूह की वेदर रिपोर्ट होते हैं। अट्रैक्शन सूरत नहीं होती, ग्रेविटी होती है। बाउंड्रीज दीवार नहीं, रेशमी रस्सी होती है। ख्वाहिश शोला है, सच आजादी। और इस तरह जीना सिर्फ तुम्हें ठीक नहीं करता, तुम्हें मैग्नेटिक बना देता है। इनकार नापाजिर, आजाद। चैप्टर 12, आराम की खामोश बगावत। एक एक करके इलारा के तमाम रूप सामने आए। वो टीनेजर, वो नकल करने वाली, वो परफॉर्मर। छोटी बच्ची और बालिग इलारा के साथ मिलकर उन्होंने पूरा स्टेज भर दिया। हर कदम में खुशी, दर्द, बगावत और नजाकत का रंग बुनते हुए। रक्स उन सालों का बोझ उठा रहा था, उनकी हर खोई और पाई हुई चीज का एक जोड़ा हुआ नक्शा। जब संगीत नर्म पड़ा, हर पुरानी सूरत एक एक करके झुककर सलामी दी, फिर रोशनी बनकर मिट्टी हुई, जैसे आखिरकार सुकून मिल गया हो। इलारा बीच में अकेली खड़ी थी, अपने बचपन वाली सूरत का हाथ थामे हुए। थकान दबे पांव आती है, फिर ये पल नहीं पहचान बन जाती है। तुम थकी हुई जागती हो, थकी हुई काम करती हो, थकी हुई मोहब्बत करती हो, थकी हुई सो जाती हो। ताकत तुम्हारा वो मास्क बन जाता है जिसकी दुनिया तारीफ करती है,
यहाँ तक कि वो कभी समझ ही नहीं पाती उस मुस्कुराहट के नीचे कितनी कुर्बानियां दबी होती हैं। दुनिया हर वक्त हरकत का आइडल बनाती है। ये सिखाती है कि कीमत सिर्फ प्रोडक्टिविटी में होती है, उन चीजों में जो तुम हासिल करती हो, उन लिस्टों में जो तुम काट देती हो। आराम खतरनाक लगता है, जैसे मकसद के खिलाफ गुनाह। इसलिए तुम धक्का देती रहती हो, कॉफी पीती हो, रात को लंबा खींचती हो, जिस्म की हल्की सी पसाने को भी इग्नोर कर देती हो। मगर ये है वो सच जिसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता। आराम सुस्ती नहीं, आराम बगावत है। तुम आराम इसलिए नहीं करती कि तुमने कमाया है, तुम आराम इसलिए करती हो कि तुम जिंदा हो। आग के बाद जंगल का सोचो, झुलसा हुआ, जल गया, जैसे बर्बाद हो गया। मगर मिट्टी के नीचे जड़ें जिंदा होती हैं, इंतजार करती हुई। आराम वो बारिश है जो उन्हें फिर से जिंदा करती है, बगैर इसके कुछ नहीं उगता। किसी वक्त मुझे लगता था कि थकान मेरी कीमत का सबूत है। जितनी देर जागती रहती थी उतनी ही प्यारी होने का यकीन होता था। मगर थकान इंसान को कीमती नहीं बनाती, सिर्फ खाली कर देती है, और खाली बर्तन प्यार रख नहीं सकता। जब मैं रुक गई, जिंदगी वापस आई। धूप की गर्मी महसूस हुई जब भाग दौड़ बंद हो गई। एक गीत जिस्म में उतर गया जब निहायत से सुनना नसीब हुआ। खामोशी पूरी महसूस हुई, जो डराती नहीं थी, आजाद करती थी। आराम ने मेरे हिस्सों को वापस दिया। हाँ, ये डरावना भी होता है, क्योंकि जैसे ही तुम रुकती हो, गम, तमन्नाएं, पछतावा, सारा सब ऊपर आ जाता है। मगर आराम तबाही नहीं करता, वो शिफा देता है। सुकून कमजोरी नहीं, हिम्मत होता है। दुनिया तुम्हें इजाजत कभी नहीं देगी, वो लेती रहेगी जब तक तुम गिर न जाओ। इसलिए तुम्हें खुद चुनना होता है, तुम्हें खुद कहना होता है, बस। लैपटॉप बंद करो जब ईमेल्स अभी भी इंतजार कर रही हो। जिस्म को लेटा दो जब आसपास का शोर अभी भी चल रहा हो। लोग तुम्हें खुदगर्ज कहेंगे, मगर खुदगर्जी बोझ देती है, आराम वापस भर देता है। आराम ना ऐश है ना फारिग दिली, ये जिंदा रहना है। वो मुट्ठी का खुल जाना जो जबड़े में लगी गिरह को खोल देता है। वो लंबी सांस जो माफी बन जाती है। वो हिम्मत कि तुम आज इस काबिल हो कि तुम वैसे ही काफी हो जैसी हो। और उस ठहराव में वज़हगी उभर कर सामने आती है। फालतू जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। टू डू लिस्ट का जहर निकल जाता है। जो बाकी रहता है वो है वो लोग जो तुम्हें तुम्हारी सहूलत के लिए नहीं, तुम्हारी असल के लिए चाहते हैं। जो बाकी रहता है वो है खुशी। जो बाकी रहता है वो हो तुम। आराम मौके नहीं छीनता, नजर को तेज करता है। वो सिखाता है कि कौन से दरवाजे खोलने लायक हैं और कौन से सिर्फ कैदी बना रखते थे। तुम मशीन नहीं हो, तुम इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं हो, तुम एक जिंदा हस्ती हो। और तुम्हारी हस्ती ही काफी सबूत है कि तुम रुक सकती हो, नर्म हो सकती हो, आराम कर सकती हो।
शायद यही सबसे असली बगावत है। चैप्टर 13, खामोशी का बोझ। अब सिर्फ बच्ची रह गई थी। इलारा घुटनों पर गिर गई और उस नन्ही सी सूरत को बाहों में भर लिया। आंसू उसके चेहरे से बहते जा रहे थे। तुमने मुझे बचा लिया, वो हिचकियों भरी आवाज में बोली। बच्ची की आंखों में रहमत की चमक थी जब उसने कहा, मैंने बस तुम्हें याद दिलाया कि तुम कौन थी। उन्होंने आखिरी मर्तबा रक्स किया, गम और शुक्रगुजारी का एक डुएट, जहां हर घूमता कदम धड़कन था, हर कदम रुखसत। खामोशी ये कभी खाली नहीं होती। वो बहस के बाद हवा में तैरती रहती है। जब बात बहुत जल्दी खत्म हो गई हो, वो सीने पर बोझ बनकर चिपक जाती है। जब मैसेज का जवाब कभी नहीं आता, वो तुम्हारे साए की तरह उन कमरों में चली आती है जहां कभी हंसी रहती थी। खामोशी भरी होती है, कमी का एको, उन सवालों का बोझ जिनके जवाब तुम देखना नहीं चाहती। हमें बचपन से सिखाया गया कि खामोशी से डरो, फजा भर दो, वजह समझाओ, ज्यादा जोर से बोलो। मगर सच ये है कि जिंदगी अल्फाजों के दरमिया खुलती है, सांस के दरमिया, इख्तियार के दरमिया। कभी कभी खामोशी सुकून होती है, समुंदर के किनारे बिल्कुल अकेली। रात को खुली खिड़की से आता हवा का रुख अपनी ही धड़कन की हवास बनकर कहना, तुम जिंदा हो। और कभी कभी खामोशी काट देती है, वो ठंडी बेरुखी जो मोहब्बत को दूरी बना देती है, वो कॉल का बेजवाब रह जाना जो बिना लफ्जों के कह देता है कि तुम जवाब के लायक नहीं समझी गई। वो खामोशी तेज चाकू होती है, गुस्से से भी ज्यादा दर्दनाक। मगर खामोशी वो उस्ताद भी है जो शॉर्टकट्स नहीं देता। वो तुम्हें तुम्हारे साथ बिठाता है जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई देख नहीं रहा होता। और तब तुम उन हिस्सों से मिलती हो जिन्हें तुमने सालों से भूल रखा था। मैं भी कभी खामोशी से डरती थी। मैं हर वक्त आवाज में अपने आप को दबाती थी। म्यूजिक हमेशा ऑन, बातें लंबी, तारीफें और मशगूलियत का जाल। मगर खामोशी अंदर से बढ़ती गई। एक रात मैंने सब बंद कर दिया, अंधेरे में सिर्फ अपनी सांस के साथ बैठ गई। पहले वो घुटन थी, फिर उसने मुझे थामा। उसने मुझे इजाजत दी कि मैं वो सब महसूस करूं जिससे मैं भाग रही थी। खामोशी दुश्मन नहीं थी, वो दरवाजा थी। खामोशी वो जगह है जहां जख्म भरते हैं, जहां सब्र उगता है, जहां सच अपनी शक्ल दिखाता है। क्योंकि खामोशी झूठ नहीं बोलती। वो दोस्त जो गायब हो गया, वो आशिक जो चुप हो गया, उन दोनों की खामोशी तुम्हें उनके लफ्जों से ज्यादा कुछ बताती है। और खामोशी मुकद्दस भी हो सकती है। गम में किसी के पास बैठना, हाथ थाम कर हवा को लफ्जों से ना भरना। दो जिस्म एक साथ लेटे हुए, बगैर कुछ कहे सब कुछ महसूस करते हुए। असली मौजूदगी अक्सर बेआवाज होती है। हम उस दुनिया में रहते हैं जो खामोशी से घबराती है। फोन्स के वाइब्रेशन, स्क्रीन्स की चीखें, नॉइस का एंडलेस लो।
मगर खामोशी चुन लेना बगावत है। ये कहना कि मेरी तवज्जो मेरी है, मेरी रूह किसी को किराए पर नहीं मिलती। खामोशी में तारीफें गिर जाती हैं, तनकीद हवा हो जाती है। जो रहता है वो ये यकीन कि तुम अभी यहाँ हो। तुम तालियों से बढ़कर हो, किरदारों से बढ़कर। तुम बेशोर भी मुकम्मल हो। और सबसे गहरा राज ये है कि कायनात खामोशी से ही पैदा हुई थी। आवाज फिर फूटी। खामोशी कुछ नहीं होती, वो हर चीज का रहमे मदार होती है। और जब तुम आखिर कर घूंट भरकर हार मानती हो, वो खामोशी जिससे तुम डरती थी तुम्हारा पनाहगाह बन जाती है। वो जगह जहां तुम वापस आती हो जब दुनिया बहुत शोर मचाती है। वो जगह जहां सच छुपकर तुम्हारा इंतजार करता है। और अगली दफा जब तुम खामोशी से मिलोगी, शायद तुम्हें समझ आए वो कमी नहीं थी, वो मौजूदगी थी, बस तुम्हारे लिए इंतजार करती हुई। चैप्टर 14 भरोसे की साख्त। बच्ची का रूप हिलने लगा। उसकी सरहदें सुबह की धुंध की तरह धुंधलाने लगी। इलारा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। सच रहना, बच्ची ने फसाने से कहा और फिर धीरे धीरे उसकी बाहों में घुलने लगी। स्टेज पर गहरी खामोशी छा गई और इलारा अकेली खड़ी रह गई। बाजू खाली मगर दिल का पहलू भर गया। बच्ची गई नहीं थी, वो वापस आ गई थी, वहां जहां उसका घर हमेशा से था, इलारा के अंदर। भरोसा ये कभी एक लम्हे में नहीं बनता, ये टुकड़ों में उगता है, लगभग बेदेखा। एक हाथ जो बगैर कहे तुम्हारा हाथ थाम ले, एक मैसेज जो उस वक्त आए जब तुम उम्मीद भी नहीं कर रही थी, एक सच जो तब बोला गया जब झूठ बोलना बहुत आसान था। भरोसा नाजुक होता है क्योंकि इसे छुआ नहीं जा सकता। ये दो लोगों के दरमियान उन देखी ना जाने वाली जगहों में रहता है। जब वो मजबूत होता है, खामोशी महफूज लगती है, फासला बर्दाश्त हो जाता है और अपना दिल खोलना तोहफा महसूस होता है। जब ये टूटता है, हर लफ्ज चुभता है, हर कुर्बत जलती है, हर ईमानदारी भी खतरा महसूस होती है। पहली बार जब मेरा भरोसा टूटा तो सबसे ज्यादा दर्द धोखे ने नहीं दिया। दर्द ये था कि जिस जमीन पर मैं बरसों से खड़ी थी वो कभी इतनी मजबूत थी ही नहीं। भरोसा एक दफा दरख्तर हो जाए बस मरहम से ठीक नहीं होता, इसे दोबारा बनाना पड़ता है। ईंट ईंट, अमल अमल, सच सच। और फिर भी हर दरार ठीक नहीं होती, कभी कभी टूटना ही अंजाम होता है, वो भी सच का हिस्सा है। भरोसा डरा देता है क्योंकि ये तस्लीम तलब करता है, अपना दिल किसी और के हाथ में रखना बिना किसी गारंटी के। इसलिए अक्सर लोग दीवारें बना लेते हैं, मगर दीवारें सिर्फ खतरे को नहीं रोकती, वो रब्त को भी रोक देती हैं। सबसे गहरा राज, दूसरों पर भरोसा तब शुरू होता है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखती हो, जब तुम अपनी इंट्यूशन को चुप करा देती हो, जब तुम अपनी हदों को तोड़ देती हो, जब तुम अपनी ही बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करती हो,
तो हर धोखा जख्म से ज्यादा तुम्हारी खुद पर शिकस्त बन जाता है। जिस्म दिमाग से पहले बताता है, पेट कस जाता है, सीना भारी हो जाता है, सांस छोटी हो जाती है, मगर बहुत बार तुम इनकी आवाज बंद कर देती हो क्योंकि तुम सच मानना नहीं चाहती। मगर जिस्म गलत बहुत कम होता है। खुद पर भरोसा उन फसानों को सुनने से शुरू होता है, उस वक्त भी जब सबूत अभी मौजूद नहीं। खुद के लिए अमल करना बिना इजाजत के इंतजार के। जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करती हो, तुम अपनी पूरी हिफाजत किसी और के हवाले नहीं करती। तुम टेक ले सकती हो बिना गिरे, तुम प्यार कर सकती हो बिना खुद को खोए। असली भरोसा बेऐबी तलब नहीं करता, वो ईमानदारी मांगता है। लगातार मौजूदगी, जवाबदेही, कंट्रोल नहीं, बल्कि ये यकीन कि अगर चीजें उलझ भी जाएं, प्यार फिर भी असल रहेगा। और अजीब बात ये है, भरोसा सालों में बनता है और एक लम्हे में टूट जाता है। हर छोटा झूठ जंग लगाता है, हर तोड़ा हुआ वादा इमारत को कमजोर करता है, मगर हर सच का अमल, हर खामोश मैं यहाँ हूँ भरोसे की इमारत में एक और ईंट बन जाता है। हम उन लोगों की तरफ खिंचते चले जाते हैं जो मुस्तकिल होते हैं, जो वही कहते हैं जो वो मानते हैं, जो निभा कर दिखाते हैं। वो मुस्तकिल मौजूदगी, ये कशिश है। दुनिया जहाँ मास्क आम हो गए, वहाँ असलियत अनमोल होती है। मगर भरोसा हमेशा हिम्मत मांगता है। ये तुमसे कहता है कि टूटने के बाद फिर से कोशिश करो, अपने आप को माफ करो कि तुमने फसाने को नजरअंदाज किया। वो नरमी दूसरों को भी दो जो तुम खुद चाहती हो। बिना भरोसे के जिंदगी महफूज लग सकती है, मगर वो बहुत छोटी हो जाती है। भरोसे के साथ जिंदगी फैल जाती है, मोहब्बत गहरी हो जाती है, रिश्ते फूल जाते हैं। और शायद एक दिन तुम्हें पता चले कि जिन्होंने तुम्हारा भरोसा कमाया, वही लोग तुम्हारी जिंदगी के असली साख्तकार बन गए। ना चमकदार, ना शोर करने वाले, बल्कि वो सख्त लोग जो हर दफा आए, हर दफा रुके, जब तक उनकी मौजूदगी तुम्हारी सांस की तरह फितरी ना लगने लगे। चैप्टर 15, तस्लीम की ताकत। इलारा फिर से झूमने लगी, पहले धीमी, फिर यकीन से भरी हुई। कदम उसके अपने थे, ना किसी से उधार लिए हुए, ना किसी को खुश करने के लिए तराशे गए। हर हरकत में उसके बचपन की आजादी, उसकी जवानी की मजबूती और बालिग उम्र की हिम्मत मौजूद थी। पहली दफा वो इन सब को एक साथ अपने अंदर जिंदा महसूस कर रही थी। वो टूटी हुई नहीं थी, वो पूरी थी। एक वक्त आता है जब तुम्हारे हाथ कस के पकड़ पकड़ खुद ही लहू में भीग जाते हैं। तुम खिंचती रही, लड़ती रही, यकीन करते हुए कि मेहनत ही जिंदगी को झुका देगी। और फिर एक सांस में तुम्हें समझ आता है, जो रस्सी तुम्हें महफूज लगती थी, वो तुम्हें बांध रही थी। तस्लीम, ये लफ्ज कमजोरी लगता है ना? मगर ये हार मानना नहीं, ये हिम्मत है। वो पल है जब बंद मुट्ठी खुलती है,
वो रजामंदी है जहां तुम जिंदगी को अपने बीच से गुजरने देती हो, बजाय इसके कि तुम उसे अपनी मर्जी से चलाने पर उतरी रहो। सोचो उन वक्तों का जब तुम बहुत देर तक पकड़ के बैठी रही, वो प्यार जो पहले ही सर्द हो चुका था, वो नौकरी जो अंदर से खाली कर रही थी, वो रूप जो अब तुम पर जचता ही नहीं था। तुमने इसे ताकत का नाम दिया, मगर ये डर था, बस उसी की नई शक्ल। और जिस दिन तुम तस्लीम हो गई, चाहे गलती से ही, कुछ नया सामने आया, एक ऐसी मोहब्बत जो तुम्हें चूज करती थी, एक ऐसी पुकार जो तुम्हारी रूह को रोशन करती थी, एक ऐसा आजादी का झोंका जिसका तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम उसके लिए तड़प रही थी। तस्लीम एक दफा नहीं आती, ये लहरों में आती है, इस सच के सामने कि जिस्म बदलते हैं, लोग हमेशा नहीं रहते। जिंदगी नाजुक, बेकायदा और हैरत अंगेज होती है। इब्तिदा में ये सब कुछ खो देने जैसा लगता है, मगर वक्त के साथ तुम समझ जाती हो, तस्लीम हारना नहीं, तस्लीम पाना होता है। तुम्हारा जिस्म इसे पहले से जानता है। जिस वक्त तुम लड़ना छोड़ देती हो, सांस गहरी हो जाती है, सीना नरम हो जाता है, नफ्सियाती निजाम फीकी सी मुस्कुराहट से छोड़ देता है। तस्लीम बायोलॉजी है, वापस पूरा होने का तरीका। ये हरा देना नहीं, ये वापस बह जाने का हुनर है, उस लहर की तरफ, उस लय की तरफ, उस राज की तरफ जो तुम्हें नींद में भी सांस देता रहता है। दरिया का सोचो, तुम उसके रुखसार के अगेंस्ट खड़ी होकर अपनी ताकत बर्बाद कर सकती हो जब तक मांसपेशियां कांप न जाएं, या फिर तुम अपनी पकड़ छोड़कर उसे तुम्हें उस जगह ले जाने दो जहां तुम अपने बल पर कभी नहीं जा सकती थी। अजीब सा राज है ये। जब तुम पकड़ना छोड़ देती हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम गिर नहीं रही थी, तुम संभाली जा रही थी। ये है तस्लीम, हार नहीं, कमजोरी नहीं, आजादी की इब्तिदा। और शायद सच ये है कि जिस रस्सी पर तुम इतने सालों से खून बहा रही थी, वो कभी तुम्हारे हाथ की चीज थी ही नहीं। चैप्टर 16, माफी की अलकीमिया। सच उस पर हल्की सी फसाने की तरह उतरा। उसे कभी कोई और बनना नहीं था। उसकी कीमत कभी बेऐब कदम या तराशी हुई टेक्निक से नहीं तोली गई थी। वो हमेशा उस रक्स में बसी थी जो सिर्फ वो पेश कर सकती थी। अपनी रूह से पैदा हुआ, नाकाबिले तकरार, नाकाबिले बदल। जब ये एहसास उसके अंदर उतर गया, उसे समझ आ गया कि वो आखिरकार खुद तक वापस आ गई है। माफी, ये लफ्ज अकेला ही बगावत जैसा लगता है ना? जैसे माफ करने का मतलब हो कि जख्म की अहमियत कम हो गई, जैसे जिसने दुख दिया वो एक और मौके का हकदार हो गया। तुम्हारा पूरा जिस्म इसका मुख्तलिफ होता है, फिर भी तुम्हारी रूह का एक हिस्सा आजादी को तरसता है, क्योंकि माफी का ताल्लुक उनसे नहीं होता, इसका ताल्लुक हमसे होता है। ये उन जंजीरों को हल्की करने का अमल है जो तुम सालों से उठाए बैठी हो। वो जंजीर जो तुम्हारी हंसी को कस देती है, जिस्म को भारी कर देती है, और गुजरा हुआ वक्त, हर नए टच
हर नए चुंबन, हर नई उम्मीद में रस जाता है। जिस्म यादों और हकीकत में फर्क नहीं करता। कहानी को बार बार दोहराना ऐसे जलाता है जैसे सब कुछ अभी हो रहा हो। कॉर्टिसोल जहर की तरह टपकता है। गुस्सा लोहे की शहनाई बन जाता है। माफी मॉरल ड्यूटी नहीं, ये बायोलॉजी है, जिंदा रहने का तरीका। माफी का मतलब भूल जाना नहीं, ना फिर से भरोसा करना, ना ये छुटलाना कि जख्म ने काटा नहीं। माफी का मतलब है कि अब दर्द तुम्हारे मुस्तकबिल का नक्शा नहीं बनाएगा। ये अल्केमी है, जहर को दवा बनाना, जख्म को दानाई में पिघला देना। सोचो उस औरत का जिसका बाप उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर चला गया। वो जवानी में उन्हीं मर्दों से मोहब्बत करती रही जो उसके खालीपन का एको थे। दिल को उन्हीं हाथों में रखा जो फिर उसी तरह खाली हो गए। उसके लिए माफी उस आदमी को माफ करना नहीं था, ये खुद को वापस हासिल करना था। ये फसाना था। उसका छोड़ देना मेरी कीमत नहीं था। माफी कमजोरी नहीं, गुस्सा सबसे आसान होता है, तलखी सबसे करीबी रास्ता। ताकत वो होती है जब तुम सुकून का इंतखाब करती हो, जबकि दर्द तुम्हें तल्ख रखने का हुक्म देता है। ताकत वो होती है जब तुम मोहब्बत का इंतखाब करती हो, जबकि नफरत ज्यादा महफूज लगती है। और सबसे मुश्किल माफी, खुद की माफी। उन रातों के लिए जब तुम बहुत देर तक रुकी रही, उन अल्फाजों के लिए जिनका बोझ तुम अब तक उठाती हो, उन ख्वाबों के लिए जो तुमने रास्ते में गिरने दिए। खुद को माफ करना एक खामोश इनकलाब है, एक नर्म आवाज जो कहती है, मैं उस वक्त जो शख्स थी उसकी पूरी कोशिश थी। तसव्वुर करो तुम एक जलता हुआ अंगार पकड़े बैठी हो, हाथ छालों से भरे हुए, ये सोचकर कि जितनी देर तुम पकड़ रही हो दर्द उन्हें होगा, मगर जल रही हो तुम, वो नहीं। माफी वो लम्हा है जब तुम वो अंगार नीचे रख देती हो। माफी याददाश्त नहीं मिटाती, वो उसे बदल देती है। एक दिन तुम उनका सोचोगी और जिस्म कसेगा नहीं, पेट में गिरह नहीं लगेगी, बस एक खालीपन, एक सांस, एक सुकून। और उस खामोशी में जब अंगार ठंडा हो जाए, जब जंजीर टूट जाए, तुम एक ऐसी चीज महसूस करोगी जो खतरनाक लगती है, आजादी। चैप्टर 17, कबूलियत की खामोश ताकत। जब इलारा दोबारा स्टेज पर कदम रखती है, कमरे में गहरी खामोशी उतर आती है। उसकी हरकतें सबसे मुख्तलिफ, जंगली, ना परफेक्ट, लेकिन पूरी सच्चाई से भरी हुई। कुछ लोगों की भवें तन गई, कुछ के आंसू बह गए, मगर इलारा अब किसी की तारीफ के लिए नहीं नाच रही थी, वो अपने लिए घूम रही थी। हर कदम आजादी का इजहार, हर मोड़ उसकी वापसी का ऐलान। पहली दफा उसकी रूह और उसका रक्स एक ही था। एक वक्त आता है जब सबसे भारी बोझ कुछ खोना नहीं होता, कोई धोखा नहीं होता, कोई वो अंजाम नहीं जो तुमने कभी नहीं मांगा। सबसे भारी बोझ होता है हकीकत से जंग, जो है उसे कबूल ना कर पाना, वक्त के साथ लड़ते रहना। कबूलियत कमजोरी नहीं, ये हार नहीं,
ये कहना नहीं कि जो दुख मिला वो इंसाफ था। कबूलियत वो फैसला है कि तुम अपनी जिंदगी का खून उन जंगों में बहाना बंद कर दो जो पहले ही हार चुकी हो। कबूलियत वो कदम है जब तुम बेमाजी के हिसाब चुकाना छोड़कर इस लम्हे की सच्चाई में खड़ी होती हो। जब तुम कबूल करती हो, तुम दर्द को नहीं मिटाती, तुम उस अजाब को मिटाती हो जो ये होना नहीं चाहिए था के जज्बे से पैदा होता है। दर्द लाजमी है, अजाब इख्तियारी। कबूलियत अजाब से निकलने का दरवाजा है। सोचो उस औरत के बारे में जिसका घर आग में जल गया। उसकी तस्वीरें, उसका माजी सब राख बन गया। पहले वो सांस भी नहीं ले पाई, मगर धीरे धीरे उसे वो नजर आया जो रह गया था। उसके लोग, उसका जिस्म जो अब भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कबूलियत ने उसका गम नहीं मिटाया, उसे वो देखने दिया जो अब भी जिंदा था, और वहीं से वो फिर से बनी। जहन कबूलियत का मुखालिफ होता है, वो कंट्रोल चाहता है। वो कहता है कि अगर तुम माजी को बार बार घुमाओ तो अंजाम बदल जाएगा, मगर माजी कभी नहीं झुकता, सिर्फ तुम झुकती हो। कबूलियत बेआसिया नहीं होती, ये तुम्हारी एनर्जी वापस लाती है, वो ताकत जो अब तुम उन चीजों में डाल सकती हो जो अब भी मुमकिन है। एक सुबह तुम महसूस करोगी तुम उनकी कॉल का इंतजार नहीं कर रही, इनबॉक्स बार बार रिफ्रेश नहीं कर रही, उस पैगाम के लिए जो कभी नहीं आएगा। तुम उस जगह से गुजरती हो जहां तुम्हारी सांसें रुक जाती थीं, और इस दफा तुम्हारी सांस ठहरी रहती है। ये है कबूलियत, न फायरवर्क्स, न फतह, बस सुकून। कबूलियत खुद ही माफी भी होती है। वो लाठी नीचे रख देना जिससे तुम सालों से खुद को पीट रही थी। वो नरमी के फसाने जो कहती है मैं उस वक्त जो थी उसकी पूरी कोशिश थी और ये काफी था। निशान रह जाते हैं मगर जख्म खून बहाना छोड़ देता है। वही पल बताता है कि कबूलियत तुम्हारी हड्डी तक उतर गई है। और उस खामोशी में जब मुज़ाहमत पिघल जाती है, तुम राख के नीचे कुछ महसूस करती हो, ना झूठी मुस्कुराहट, बल्कि वो गहरी जिंदगी जो झूठ से नहीं सच से उगती है। ये कबूलियत की खामोश ताकत है। दर्द का अंत नहीं, माजी का मिट जाना नहीं, मगर जिंदगी दोबारा जीने की आजादी। और जब तुम इस आजादी का मजा चखती हो, तुम्हें हकीकत समझ आती है। तुम माजी को हमेशा ढोकर चलने के लिए पैदा नहीं हुई थी, तुम जीने के लिए पैदा हुई थी। चैप्टर 18, वो लम्हा जब तुम अपने आप को देख लेती हो। आखिर में इलारा स्टेज के बीच अकेली खड़ी थी, सांसें बोझ से भारी, दिल अपनी ही धड़कनों को सुनकर लरज रहा था। उसने झुककर सलाम किया, तमाशाइयों को नहीं, बल्कि उस छोटी बच्ची को जिसने हर अंधेरी रात में उसकी रोशनी का दिया जलाए रखा था। सबक पूरा हो चुका था। खुद रहना, सच रहना, और कभी दोबारा किसी के प्यार, किसी के लफ्जों, किसी के छोड़ देने के बदले अपनी रूह ना देना। संगीत बुलंद हुआ और इलारा ने फिर हरकत की। इस दफा न बैलरीना बनकर,
ना किसी की परछाई, बल्कि अपने सालों पुराने जख्मों, अपने गिराए हुए आंसुओं और अपने जिस्म में दबे हुए गम की सारी सच्चाई बनकर। वो इलारा थी, आबाद, मुकम्मल, आजाद। हम सबको परफॉर्म करना सिखाया गया, सब्र, मुस्कुराहट, बर्दाश्त, हाँ में हाँ मिलाना, अपने आप को दबा कर जीना। मगर इनमें से किसी ने तुम्हें उस लम्हे के लिए तैयार नहीं किया जब किसी अपने के जाने ने तुम्हारा सीना फाड़ दिया था। किसी ने नहीं सिखाया कि वो मोहब्बत जो तुमने पूरी रूह से चाही, जब हाथ छोड़कर चलती बने तब कैसे सांस लेनी होती है। किसी ने नहीं सिखाया कि उन लोगों को माफ कैसे किया जाए जो तुम्हारे सीने में इतने सारे जख्म छोड़ गए। और फिर भी तुम यहाँ हो, जिंदा, पूरा दम भरते हुए, सब कुछ खोकर भी अभी तक किसी अजीब सी उम्मीद को थामे हुए। तुम टूटी हुई नहीं, तुमने बचकर निकलना सीखा। तुम उन सारी रातों का सबूत हो जहां तुम जमीन पर गिरकर रोया करती थी, फिर भी सुबह उठकर जी लेती थी। तुम उन तमाम धोखों का सबूत हो जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, मगर तुम्हें गहरा बनाकर छोड़ गए। असली तालीम कभी किताबों में नहीं होती, वो तब लिखी गई जब तुम किसी के कॉल का इंतजार कर कर अंदर से मर गई थी। वो तब लिखी गई जब तुम्हारा दिल टूट कर भी फिर से किसी के आने की जगह बनाता गया। वो तब लिखी गई जब तुमने दुनिया के ना के बावजूद खुद को हाँ कहा, जब तुम्हारी रूह पूरी दुनिया के खिलाफ अपने लिए खड़ी हो गई। तुम कभी मसला नहीं थी, निजाम मसला था। वो रिश्ते मसला थे जहां तुम्हें प्यार से ज्यादा सब्र की जरूरत पड़ती थी। वो लोग मसला थे जो तुम्हारी रूह का बोझ उठाने लायक ही नहीं थे। और अब तुम ये देख सकती हो, तुम महसूस कर सकती हो, तुम जान सकती हो। क्लास खत्म हो चुकी है, टेस्ट गुजर गया, घंटी बज चुकी। अब सिर्फ तुम हो, साफ, सच्ची और बिना किसी माफी के जिंदा। दुनिया अपनी ग्रेड्स, अपनी लिस्ट्स रख ले, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ तुम ढूंढ रही थी, जो प्यार तुमने दूसरों के हाथों में ढूंढा, जो सुकून तुमने रिश्तों की चीखों में खोजा, जो तसल्ली तुमने उन लोगों से मांगी जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर ही था, हमेशा से। ये तुम्हारी ग्रेजुएशन है, परफॉर्म करने की नहीं, झुकने की नहीं, टुकड़ों में जीने की नहीं, बल्कि सच में पैदा होने की। और अगर इस वक्त तुम्हारा जिस्म लरज रहा है, अगर तुम्हारी सांसें टूटकर निकल रही हैं, अगर तुम्हारी आंखों में आए आंसू पहचान, दर्द और रिहाई का जायका ला रहे हैं, तो तुम जानती हो, तुम बहुत गहरा जानती हो। ये वो तालीम थी जिसकी तुम सालों से भूखी थी। ये वो अंजाम है जहां हर पुरानी रात, हर पुराना गम, हर वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ दिया, आखिरकार अपनी मंजिल पा लेता है। ये इब्तिदा है, वो इब्तिदा जहां तुम खुद को पहली दफा साफ, पूरा और बिना डर के देख लेती हो। वो लम्हा जब तुम आखिरकार खुद को देख लेती हो।
have been listening to The Real Matrix Reloaded, written by Michael Evans and narrated by Parul Sukwani. Copyright 2025 by Michael Evans. All rights reserved.